May I come in, sir? Yes, please come in. Good morning, sir. Good morning. Have a seat. Thank you, sir. Introduce yourself without reveal your name. So I belong from Badmer. It's a border town, and I did my primary schooling from Badmer itself. Then after I did my 10th from Sikar and 12th from Kota, and then I did my graduation from IIT Kanpur. Afterwards, I worked for 2 years as a business development executive in a private firm in Gurgaon, and afterwards I am preparing for the civil services examinations, including RPSC exams. Okay. You did your BTech from IIT Kanpur. Yes, sir. It is prestigious IIT in India. Yes, sir. Then why civil services? So, in the time of graduation itself, so I had developed a inclination particularly for the international relations and all. And then after I found civil services as a good avenue where I could pursue this interest because there are certain subjects where I can study them, and their application part to being a diplomat or in whatever capacity I can contribute. So their CSC and the civil services examinations, I found them a very good avenue. What is your optional subject in CSE? That is political science and international relations. Okay. Your hobby is great domestic affairs of Pakistan and its foreign relation. Yes, sir. Why Pakistan? So Why not India? India is there, but as a hobby, I mean, right from childhood, I have seen the immigrants and the illegal immigrants rather from the Pakistan. I have seen them who have the cross-cultural relations with Pakistan, particularly from the Sindh. So I have seen the chance of Bhutto, G.A. Bhutto, because they associate with them. And then after through the international relations as well, and when I see the expert domain in India who look after Pakistan, so there is still a lack of understanding of the common people, the cross-cultural relations, and what is the actually happening in Pakistan. So that attracted me towards this domain, and after a while I found it very interesting because the nature of Pakistan, and it stayed with me as a hobby. Okay. Seema Haider is hot topic in media. Yes, sir. Indian in Pakistan nowadays. Why? And who is she? She is a common citizen from Pakistan, and on the face of it, it looks like she is a lover of a common Indian boy, and they met through the PUBG online gaming, and then she crossed over illegally in India, and she caught the eyes of intelligence agencies. And if we go deeper into her accent, which is not a Pakistani accent from any province, and also her other skills, her linguistic skills, the way she dresses, it's completely Indian. And incidentally, when she got the eyes of intelligence agencies, that's why she got caught, and now there is a probe on it. Had it not happened, then she would have gelled very well with Indian community, and if it comes out that she is a spy indeed, then it would have been very difficult for Indian agencies going forward. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. You have worked as a business development executive. Yes, sir. Tell about the startups concept in India. So startup is it consists of three things mainly. Mainly, it should be an original idea. It should be scalable to great height, and the third one, there should be a technological part involved in it. What do you mean by MNCs, multinational corporations? These are the big ticket companies which have headquartered or the origin in one countries, but their operations are in many countries. Their scale is very high, and they have the scale which can impact, make or break any country's economy as well. You have completed your civil engineering from IITs. Yes, sir. Why you don't go to the MNCs? So, I mean, if I say I had no particular interest, I mean, by the end of my graduation, so I veered towards this particular civil services domain, and in order to survive myself and to earn something so that I can be able to continue with my coachings and other further stay. That's why I joined. No other particular interest. Tell about the major characteristics of Badmer presently and compare before 10 years. Currently, the major things in which Badmer is recognized is one is its oil reserves, its energy footprint. It is one of the highest producer in India
behind Bombay High. The second one is agricultural industry right now in terms of the dates and anar and all. The third one, I would say, overall the Badmer's educational the background right now, in which consistently in all the Indian prestigious exams, the guys from Badmer are topping. If I compare it to the picture 10 years before or before that, so there were lack of ambitions back then and also the lack of resources, which is not the case right now. Now people are very buoyant and they are going for their dreams. Kajri. Yes, sir. What do you mean by Kajri? It's a full form is Center for Arid Zone Research Institute. It is situated in Jaipur. In Jaipur? In Jodhpur. In Jodhpur. And they do research on the products which can be grown in arid climate. What is the difference between Kajri and Afri? Kajri and Afri. So, I'm not aware about Afri. Afri. DRDO. It's full form Defense Research and Development Organization. It's a premium organization in the field of the defense to do the cutting edge research and to give Indian defense industry their the indigenous push to indigenize the whole scenario. आपने अभी बताया कि महंगाई राहत कैंप में शहरी रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार योजना राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है। जी सर। आप बिल्कुल श्योर हैं इस बात को लेकर? सर, I may be wrong. I'm not sure. आप बताइए मुझे, अभी आप पाकिस्तान, आपने अपनी हॉबी में लिखा है कि आप पाकिस्तान के जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर या फॉरेन रिलेशनशिप के ऊपर बात करना चाहते हैं। पाकिस्तान में किस स्टेट से सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर हुए? पाकिस्तान में सर पंजाब से। पंजाब से दो तीन लोगों के नाम बताइए। पंजाब से सर लियाकत अली खान, नवाज शरीफ, ठीक है, and चौधरी सुजात अली खान इन द टाइम ऑफ, ठीक है। कैंप डेविड में आज तक पाकिस्तान के कितने प्राइम मिनिस्टर गए? कैंप डेविड के अंदर आई थिंक एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं गया कैंप डेविड के अंदर। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हाँ, मिलिट्री डिक्टेटर्स गए हैं वहां पर। पाकिस्तान में ऐसे सिटीज बताइए जहां पे सोसाइटी जो है फीमेल डोमिनेंट है। ऐसा मैं कोई याद नहीं कर पा रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर थ्रू आउट इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। ठीक है, एक जनरली कुछ लोग इसको फैक्ट ही बताते हैं कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे फ्री मीडिया है। नो सर, इट्स अ मिथ। पाकिस्तान का मीडिया सबसे बंधा हुआ मीडिया है। कोई भी मीडिया पर्सन किसी भी दिन गायब हो सकता है। वो एक अलग बात है, लेकिन वो एक अलग बात है, वो इश्यूज अलग हैं, पर वो वहां पे मतलब मीडिया जो है वो फ्री होके काम करता है, इसका मतलब ये। मैं सर फंडामेंटली इस चीज से एग्री नहीं करता, तो आई कैन नॉट गिव अ कमेंट। इस्लामिक स्टेट होने के पाकिस्तान को क्या फायदे हुए? इस्लामिक स्टेट होने के पाकिस्तान को अभी रिसेंट सिनेरियो में देखें तो जैसे अफगानिस्तान के अंदर खोरासन चैप्टर अभी भी एक्टिव है इस्लामिक स्टेट का। सॉरी सर, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन रॉन्ग। आई गेस यस, मैं कहना चाह रहा था पॉलिटी के बारे में एक्चुअली कि क्या फायदे हुए हैं पॉलिटिकली, इंटरनली और फॉरेन पॉलिसी में। इंटरनली ओवरऑल एक तो कोहेशन की बात है एज ए नेशन। इनिशियली इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर करने पर पाकिस्तान को एक कोहेशन की इश्यू नहीं आया इनिशियली। और दूसरा, जो बाकी पाकिस्तान मुल्क इस्लामिक मुल्क है दुनिया के अंदर, उनके साथ उम्मा के तौर पे पाकिस्तान को जुड़ने में, और खासकर इस समय जो पाकिस्तान को प्रॉब्लम पेश आ रही है इकोनॉमिकली, तो उसके अंदर यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देश। क्या पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट, डेमोक्रेसी और रिलीजियस स्टेट का कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल है? नो सर, हिस्टोरिकली देखें तो दोनों के अंदर बहुत ही कोई ऐसी समानता नहीं है कि दोनों एक साथ काम कर पाते हैं। जनरली एक थियोलॉजिकल स्टेट होता है, वो एक डिक्टेटरशिप या फिर एक किसी न किसी फैमिली बेस्ड उस पे। क्योंकि आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं, यूएसए की कौन सी वाली पार्टी है जो पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान? एज सच कोई पार्टी नहीं है। वो उस समय की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या है उस बेसिस पे यूएसए की दोनों प्राइमरी पार्टियां पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। अगर हम एक लाइन में पाकिस्तान का नेशनल कैरेक्टर डिफाइन करना चाहें तो क्या बताएंगे आप? दे आर गुड अंडर क्राइसिस। दे आर गुड अंडर क्राइसिस, यस, ओके। ईश निंदा कानून जो पाकिस्तान में है,
उसके शिकार कोई बड़े लोग बताइए। उसमें एक आसिया बीबी है हम्म, जो रिसेंट केस है। उसके अलावा मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। रबी और खरीफ की फसलों की, रबी की जो फसल होती है उसकी बुआई कब की जाती है? रबी की फसल इस समय दिसंबर और जनवरी के आसपास जब सर्दियां चालू हो रही होती है, ठीक है। उस समय उसकी बुआई और की जाती कटाई कब चालू होती है? है। कटाई जनरली होली के आसपास, मार्च और अप्रैल के अंदर। हमारे यहाँ सबसे प्रॉब्लमेटिक फसल कौन सी है जिसपे मानसून की मार पड़ती लगभग सारी फसलें हैं जो मानसून के समय बोई जाती है। पर्टिकुलरली मैं इंगित नहीं कर पा रहा। है? ठीक है, आप मुझे कुछ मुस्लिम त्योहार बताइए। मुस्लिम त्योहारों के अंदर ईद उल फितर, बकरीद और किसी भी व्यक्ति बड़े संत का उर्स, उसके अलावा मुहर्रम, ये सारे मुस्लिम त्योहार। थैंक यू सर। ओके, IITN, मुझे ये बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग में क्या फ्यूचर एवेन्यूज हो सकते हैं? इस समय सिविल इंजीनियरिंग का बूम है, खासकर इंडिया में। इस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर जो जो काम हो रहे हैं, तो उसके अंदर जितना भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हो चाहे ब्रिजेज वगैरह हो, उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, और रिन्यूएबल एनर्जी का कोर पार्ट इटसेल्फ, इसके अंदर बहुत सारे एवेन्यूज है प्रेजेंट टाइम। तो आपने ये सिविल इंजीनियरिंग को छोड़कर प्रशासन में आने का निर्णय क्यों लिया? प्रशासन मेरे को, और खासकर कुछ एरियाज पॉलिसी फॉर्मेशन वगैरह, वो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते रहे हैं। एक बेसिक नेचर है, और बचपन से ही अखबार पढ़ना और चीज़ों को उसी तरीके से देखना, तो वो एक बेंट ऑफ माइंड बचपन से वैसा ही बना रहा। और IIT में जाने के बाद एक्सपोजर और अच्छा मिला, ताकि मैं बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाऊँ। तो धीरे धीरे मैं प्रशासन और उसके एरियाज की तरफ मुड़ता चला गया। ई गवर्नेंस में आप सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसे देंगे? ई गवर्नेंस में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मैं सर्विस डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए दूंगा, ताकि जो स्कीम बनाई जा रही है वो सफल हो, जिसके लिए वो बनाई गई है। ओके, अच्छा, सॉफ्ट डिप्लोमेसी क्या है? इंडिया की डिप्लोमेसी किस तरह की है? इंडिया की डिप्लोमेसी ट्रेडिशनली मैम सॉफ्ट ही रही है। अब धीरे धीरे इंडिया पावर और हार्ड डिप्लोमेसी की तरफ जा रहा है। क्यों? फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी एंड लुक ईस्ट पॉलिसी से अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी, या ब्रदरहुड पॉलिसी, मतलब जो जितनी भी डॉक्ट्रिन्स हैं, वो तो केवल सारी जो डॉक्ट्रिन्स हैं वो तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी की ओर ही इशारा करती है। वो मैम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ ही है, लेकिन एक एलिमेंट जो था वो इंडिया की जो मिलिट्री पावर है, उसका एलिमेंट कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी से मिसिंग था। उसको अब इंडिया धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा है। वो चाहे ब्रह्मोस का या फिर ध्रुव हेलीकॉप्टर, इनका एक्सपोर्ट हो फिलीपाइंस, वियतनाम वगैरह को, तो धीरे धीरे इंडिया उस चीज को लेवरेज कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म क्या है? ये मैम इंडिया पाकिस्तान के संदर्भ में ज्यादा यूज करता है। वो पाकिस्तान द्वारा जो नॉन स्टेट एक्टर्स है, टेररिज्म है, उनको यूज करना अपने ऑफिशियल पॉलिसी गोल्स के अंदर, ये सॉफ्ट बॉर्डर टेररिज्म के अंतर्गत आता है। व्हाट आर द मेजर पॉलिसीज टू कॉम्बैट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म? सबसे बड़ी तो बात है कि हम अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है उसको सिक्योर करें। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज है बॉर्डर मैनेजमेंट। सेकंड चीज है, जहां से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आ रहा है उस कंट्री को कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेज किया जाए। और तीसरा, उनको वर्ल्ड स्टेज के ऊपर सिग्नल आउट करके उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए। थर्ड पॉइंट है इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, सर्वेलेंस सिस्टम वगैरह, पुलिस वगैरह, उस और इंटेलिजेंस सिस्टम को मजबूत किया जाए। थैंक यू मैम। पाकिस्तान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण थे और क्या सिद्धांत था? पाकिस्तान की उत्पत्ति के पीछे टू नेशन थ्योरीज को बताया जाता है, जिसके अंदर जो मुस्लिम थे अर्स्टवाइल इंडिया के अंदर 1947 से पहले, उन लोगों का ये मानना था कि हम और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते, और हमें अपनी सिविल लाइफ यदि शांतिपूर्वक जीनी है, अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी है, तो हमें एक नया नेशन चाहिए। तो उसके तहत ही जिन्ना के नेतृत्व के अंदर पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान मूवमेंट चलाया गया था, और 1947 में ये लोग अलग हुए थे। पाकिस्तान फिर जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बना, क्या वो वहां पे उसको पूरा कर पाया? थ्योरेटिकली सर देखें तो 30 साल के अंदर ही 1971 के अंदर टू नेशन थ्योरी टूट गई। कि उनका ये था कि एक रिलीजन वाले लोग अलग रह सकते हैं, तो एक रिलीजन वाले लोग टूट गए, और बंगाली लोगों की एफिनिटी बंगालियों से ज्यादा थी, क्योंकि इंडिया के वेस्ट बंगाल ने उनकी बहुत हेल्प की थी। तो उस चीज के अंदर वो लोग नाकाम रह गए, और
ओवरऑल भी देखें तो आज इंडिया उनसे ज्यादा प्रॉस्परस है एक सेकुलर नेशन होते हुए, और पाकिस्तान एक इस्लामिक पॉलिटी होते हुए भी आज एक प्रश्नवाचक चिन्ह पे खड़ा है उनके फ्यूचर के लिए। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।